सिस्टर रूथ रेडी है? हाँ जी हाँ जी हाँ, जय मसीह सिस्टर जी, जय मसीह। गॉड ब्लेस यू सिस्टर जी। हाँ जी, तुसी अपना गीत स्टार्ट कर सकते हो सिस्टर जी, भजन अपना स्टार्ट कर सकते हो। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। प्रभु के लिए एक जरूर गाएंगे। तू आके मेरी जा मुबारक खुदा है, तू आके मेरी जा मुबारक खुदा ते उस दाही नाम पवित्र सदा, ते उस दाही नाम पवित्र सदा, तू आके मेरी जा, तू आके मेरी जा मुबारक खुदा, तू आके मेरी जा। कदी भी न भूले बख्शिशा दिया नु, कदी भी न भूल बख्शिशा दिया, तू कह मेरी जा मुबारक खुदा, तू कह मेरी जा मुबारक खुदा, तू आके मेरी जा, तू आके मेरी जा मुबारक खुदा, तू आके मेरी जा। तेरे सारे पापां नू है मिटा, तेरे सारे पापां नू है मिटा, तेनू सारे रोगां देंदा शिफा, तेनू सारे रोगां तू देंदा शिफा, तू आके मेरी जान, तू आके मेरी जा मुबारक खुदा, तू आके मेरी जान, तेरी जान मौत तो बचांदा, तेरी जान मौत तो है बचा, तेनू ताज रहमत करदा अदा, तेनू ताज रहमत करदा अदा, तू आके मेरी जान, तू आके मेरी जा मुबारक खुदा, तू आके मेरी जान, तेनू चंगियां चीजां तेनू चंगियां चीजां नाल होए रजा, तेरी उम्र नू ओ खुशी बख्शिदा, तेरी उम्र नू ओ खुशी बख्शिदा, तू आके मेरी जान, तू आके मेरी जा मुबारक खुदा, तू आके मेरी जान, तू काबां दे वांग तेनू जोर दे के, काबां दे वांग तेनू जोर दे के, ओ तेरी जवानी नू करे तानेआ, ओ तेरी जवानी नू करे तानेआ, तू आके मेरी जान, तू आके मेरी जा मुबारक खुदा, तू आके मेरी जान, ओ सब दुखियां कंगाला दे लिया पियो, सब दुखियां कंगाला दे लिया, पीने नाल सच्चिया करदा खुदा, नेहा नाल सच्चिया करदा खुदा, तू आके मेरी जान,
तू आँख मेरी मुबारक खुदा, तू आँख मेरी जान। विखाया हेरा अपना मुँह सानू उसने, विखाया हेरा अपना मुँह सानू उसने, बनी इज़राइल दा ओही सहारा, बने इज़राइल लेदा ओही सहारा, तू आँख मेरी जान, तू आँख मेरी जान मुबारक खुदा, तू आँख मेरी जान। ते उसदा ही नाम पवित्र सदा, ते उसदा ही नाम पवित्र सदा, तू आँख मेरी जान, तू आँख मेरी मुबारक खुदा, तू आँख मेरी जान। हालेलुया। Hallelujah. Amen. Amen. God bless you, sister. God bless you, brother. अच्छे भजन वास्ते और प्रभु ਦੀ ਸਤਾਇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜਲਾਲ ਮਿਲੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ ਇਸ ਲਗਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਅੱਛੇ ਮਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤਾਇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਦਈਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਛੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤਾਇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। For this one preparation that our brother, sister and his family, they always do for praising the Lord. They're always ready with psalms or hymns or some bhajans for the glory of God. May God bless the whole family. And this is a great encouragement for all of us that we should give our contribution. The contribution is not only money. His contribution is my effort, my time, my voice, my heart. All these things are my contribution to God. So Prabhu da bahut dhanyawad ho. May God bless you for this wonderful song. We have Sister Rima also हमारे साथ जुड़ गई हैं। तो Sister Rima, आपके पास भी गीत है, आप रेडी हैं? जय मसीह की। जय मसीह की भाई जी। आज नहीं है, आज तैयार नहीं हूँ। कोई बात नहीं, आज आप गीत सुनना जी। आप हमेशा आपके पास गीत रहता है। सिस्टर रीमा इज very good sister. She is the wife of our brother Kishan, and she is always ready. But there's hardly any time when she is not ready. But God knows the reasons. So we are so much blessed to have our sister Rima with us. And God bless you, sister. Prabhu aapko bahut आशीष दे. Now we will hear the song from Sister Ripsim. Sister Ripsim, you're going to sing in English or which language? English. Yeah, okay, sister. So you can start your song. God bless you. God bless you, sister. I will dwell in the shadow of your wings. I will know of the peace your love can bring. Night will fall, but I will not be afraid when I dwell in the shadow of your wings. In the shadow, in the shadow, in the shadow of your wings. In the shadow, in the shadow, in the shadow of your wings. Safety
He lies in the shadow of your wings. I rely on your faithful covering. Arrows fly, but I will not be afraid when I dwell in the shadow of your wings. In the shadow, in the shadow, in the shadow of your wings, in the shadow, in the shadow, in the shadow of your wings. Amen. God bless you. आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। सिस्टर ने अभी बहुत अच्छा गीत गाया कि मैं तेरे पंखों के छां के तले, छां के नीचे मुझे आराम मिलता है, मुझे शांति मिलती है। चाहे मुझ पर रात का अंधेरा गिरे फिर भी मैं नहीं डरता, और क्योंकि प्रभु जो है वो मुझे ढाके रहता है, प्रभु मुझे बचाए रखता है, और प्रभु के अंदर ही मेरे को शांति और चैन मिलता है। It was a very nice song. I'll dwell in the shadow of your wings. One believer is praying to the Lord and showing the faith and acknowledging that all the peace and love comes from the Lord only. Even if there is a problem on me, even if I'm in the darkness, I will still be in peace. So thank you, sister, for this song. God bless you, sister. That's him. Any other brother or sister want to sing a song? This is the time. ब्रदर मैं एक जबूर गावांगा, जबूर। Okay, sure, brother. Sure. Brother R.K. Joshua is going to sing one of the Psalms. एक जबूर गाएंगे by R.K. Joshua. God bless you, brother. God bless you. You can start. थैंक यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। सच्चियां दी टोली विच दिल नाल गावां, सच्चियां दी टोली विच दिल नाल गावां, सना सुनावां मैं रब दी, आओ सना, गाओ सना तुसी रब दी, तुसी गाओ सना। सच्चियां दी टोली विच दिल नाल गावां, सच्चियां दी टोली विच, सच्चियां दी टोली विच दिल नाल गावां, सना सुनावां मैं रब दी, तुसी गाओ सना, गाओ सना तुसी रब दी, तुसी गाओ सना। कम खुदा दे अतहन वडेरे, कम खुदा दे अतहन वडेरे, कुदरत उस दी है लभदी, तुसी गाओ सना, गाओ सना तुसी रब दी, तुसी गाओ सना। कामो दे हत्थां दे सबो जलाली, कामो दे हत्थां दे सबो जलाली, ओदी सच्चाई है अबदी, तुसी गाओ सना, गाओ सना तुसी रब दी, तुसी गाओ सना। रब ने अजायब कम जो कीते, रब ने अजायब कम जो कीते, यादगारी रखी सब दी, तुसी गाओ सना, गाओ सना तुसी रब दी, तुसी गाओ सना। पाक खुदावंद अत मेहरबान है, पाक खुदावंद अत मेहरबान है, रहमत बेहद रब दी, तुसी गाओ सना,
गाओ सना तुसी रब दी, तुसी गाओ सना। रोजी पांदे भुखे ना रहिंदे, रोजी पांदे भुखे ना रहिंदे, आस जिन्हां नूं है रब दी, तुसी गाओ सना। गाओ सना तुसी रब दी, तुसी गाओ सना। जो कुछ रब ने अहद है कीता, जो कुछ रब ने अहद है कीता, याद ओ रखदा है अबदी, तुसी गाओ सना। गाओ सना तुसी रब दी, तुसी गाओ सना। सच्चियां दी टोली विच दिल नाल गावां, सच्चियां दी टोली विच, सच्चियां दी टोली विच दिल नाल गावां, सना सुनावां मैं रब दी, तुसी गाओ सना। गाओ सना तुसी रब दी, तुसी गाओ सना। आमीन आमीन। Bless you, brother. God bless you. Gao sana tusi rabdi. Or this is, we have to sing praises to the Lord, and because He is only our refuge, He is only our support. Thank you, brother Joshua. God bless you for this. Thank you. Now we will move further in our meeting, and हम अपने सभा में आगे बढ़ते हुए प्रार्थना करेंगे, और इस सभा को प्रभु के हाथ में सौंपते हुए हम इस सभा के लिए विनती करते हैं। हम में से जो भी कमजोर या बीमार या किसी परेशानी में पाए जाते हैं, और हम कुछ भाई बहन हैं जो कि आर्मेनिया में वो तैयारी कर रहे हैं अपने बैप्टिज्म के लिए। उन्होंने वचन सुना है, प्रभु उनको मजबूती दे, उनके दिल को तैयार करे, मजबूत करे, जिससे कि वो भी अपने आप को तैयार कर सकें। और वहाँ पर कुछ एक भाई हैं जो कि उनके ऊपर कुछ इस प्रकार का इन्फ्लुएंस है, शैतानी इन्फ्लुएंस है, जो कि उनको बार बार तंग करता है। उसकी वजह से वो परिवार बहुत दुखी है, और ये प्रभु से हमारी प्रार्थना है। हम इंडिविजुअली तो करते ही हैं, पर एज ए ग्रुप भी हमारी ये प्रार्थना है कि उस भाई का नाम है भाई आरम, और वो आर्मेनिया में रहते हैं, और उनकी बहन ने अभी बपतिस्मा लिया है 2 हफ्ते पहले जब हम वहाँ थे। वो बड़ी अच्छी बिलीवर हैं, परिवार बहुत अच्छा है। उनमें जो भाई है ये भी बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा मनुष्य है, वेरी नाइस पर्सन। बट क्या है कि कोई बीमारी, मानसिक बीमारी ने उसको घेर रखा है, और अगर इसके पीछे किसी गलत आत्मा का या किसी शैतानी ताकत का हाथ है, तो हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि उनको ऐसा विश्वास दे कि वो शैतानी ताकत उस भाई को छोड़े। और वो बहुत अच्छा भाई है, हमारी उससे बातचीत हुई थी, बहुत हंसमुख है और बहुत हर बात को समझता है। पर जब कभी शैतान हमको तब पकड़ता है जब हम संगति से दूर होते हैं। जब हम संगति में मजबूत रहते हैं तो शैतान हमको हमारे पास नहीं आता है। हमने उसके साथ पूरा दिन संगति करी और वो बहुत अच्छे से रहा, सब कुछ बहुत अच्छा था। और जब वो अकेला पड़ जाता है तो कभी कभी उसको शैतान आकर तंग करता है। तो पर प्रभु का आत्मा तो हमारे साथ हमेशा रहता है, इसलिए हम इस बात को ध्यान में रखें कि उसके लिए हम प्रार्थना करें। उनका नाम भाई आरम है और वो आर्मेनिया में रहते हैं, और वहाँ पर भी 1-2 और लोग हैं जिनके लिए प्रार्थना की जरूरत है। और प्रभु उन सबको शक्ति दे और उनको तैयारी दे। और जिन बहनों ने अब बपतिस्मे के लिए वचन सुन लिया है और वो तैयारी में है, प्रभु उनको भी बहुत आशीष दे और तैयारी बख्शे। अब हम में से भी अगर कोई कमजोर या बीमार या किसी पीड़ा में है तो प्रभु हम सबके कारण जानता है नाम बनाम, और हम सबको प्रार्थना में याद रखेंगे और इस सभा को भी
जिससे कि प्रभु हम सबको बहुत बहुत आशीष देवे और बहुत मजबूती देवे विश्वास में, और आत्मिक तौर पर मजबूत करता चला जाए। शरीर तो क्षीण है, शरीर तो एक दिन कमजोरी की हालत में जमीन में जाना ही जाना है जब तक प्रभु नहीं आता। तो इसलिए हमारी ये प्रार्थना है कि हम इस समय को ध्यान में रखते हुए अब इस मीटिंग को प्रभु के हाथ में सौंपते हैं कि प्रभु हम सबको ये आशीष दे कि हम मजबूत बने और इस मीटिंग को और इस सभा को और उसके वचन के सुनने और सुनाने पर भी हमको आशीष मिले। भाई सुरेंद्र के साथ अब हम प्रार्थना करते हैं। भाई सुरेंद्र, bless you। सभी भाई बहनों को आइए हम अपने सर उसकी हुजूरी में झुकाएं। खुदा उनका धन्यवाद करते हैं इस अपॉर्चुनिटी के लिए जो उसने हमें बख्शी है, ताकि एक बार फिर अच्छे माहौल में उसके चरणों में इकट्ठा हो सके। हम दूर दूर हैं बेशक, लेकिन वो हम सबको देख रहा है, सबके साथ है। अपने वायदे के अनुसार बेशक हम गिनती में थोड़े हैं, लेकिन प्रभु हमारी हृदयों की दशा जानता है कि हम उससे कितना प्यार करते हैं, क्योंकि पहले उसने हमसे होकर अपने आप को दे दिया हमारे प्यार के खातिर। आसमान और जमीन के मालिक, हमारे उद्धारकर्ता यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम तेरे पास आते हैं। तेरा बड़ा धन्यवाद करते हैं प्यारे बाप आसमानी, तेरी दया और तेरी करुणा के लिए जो तूने हम पर की है प्रभु, और ये सुंदर अवसर के लिए धन्यवादित है प्यारे पिता कि हमारी जिंदगियों में मिला प्रभु, ताकि हम प्यारे भाई बहन प्रभु यीशु मसीह जो दूर दूर से तेरे नाम में इस जूम प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होने का तूने फजल दिया है प्रभु, तेरा हृदय से शुक्र अदा करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ प्यारे बाप आसमानी, क्योंकि तू अपने बच्चों के बीच में पाया जाता है प्रभु। आज सप्ताह के पहले दिन जितने तेरे बच्चे इकट्ठा हुए प्रभु यीशु मसीह, तेरी उपस्थिति उनके साथ बनी रही प्रभु जी, और जो इकट्ठा होने वाले हैं उनके साथ भी तेरी उपस्थिति बनी है प्रभु। और हम जो यहाँ दूर दूर से प्रभु यीशु मसीह प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा हैं, तो हमारे बीच में पाया जाता है प्यारे पिता। बाप आसमानी देख, हम गिनती में बहुत थोड़े हैं, लेकिन प्यारे पिता तेरे खून खरीदे हुए बच्चे हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह, और तुझको पुकारते हैं प्यारे बाप आसमानी, क्योंकि तूने अपने कलाम में ये कहा है प्रभु कि जो अपने कान व्यवस्था सुनने से फेर लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। प्यारे बाप आसमानी, तूने वही मत्ती 21:22 में ये कहा है कि जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास के साथ मांगोगे वह सब मैं तुमको दूंगा। प्यारे बाप आसमानी, हम अच्छे नहीं है लेकिन तू अच्छा है प्रभु, क्योंकि हम तेरे नाम में जो कुछ भी मांगते हैं तू हमें प्रदान करता है। तुझसे हमारी प्रार्थना है प्यारे पिता, तू हमारी दुर्दशा को देख प्यारे प्रभु यीशु मसीह, और हर एक भाई बहन को प्रभु यीशु मसीह तू स्ट्रेंथन कर अपनी आमद के लिए प्यारे पिता, ताकि प्यारे प्रभु यीशु मसीह तेरा जो वादा है कि मैं आऊंगा और तुम्हें ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। प्यारे बाप आसमानी, हम तेरे वादे को याद करते हैं, और प्रभु जब अपने को देखते हैं हम इस योग्य नहीं पाते प्रभु, लेकिन सारी योग्यता तेरी है प्यारे पिता। तेरी योग्यता पर हम भरोसा करते हैं प्रभु, क्योंकि जो तूने वादा किया है प्रभु, उसमें से एक मात्रा एक बिंदु भी बिना पूरा हुए टल नहीं सकता प्यारे पिता। बाप आसमानी, अपनी योग्यता हमें प्रदान कीजिए प्यारे पिता। इस मीटिंग को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। जो भी तेरे बच्चों ने गा बजाकर तेरी स्तुति बढ़ाई की है प्यारे बाप आसमानी, वो तुझे ग्रहण योग्य हो। हर एक भाई और बहन को प्रभु तो ब्लेस कर, उनके परिवार और उनके खानदानों को ब्लेस कर प्यारे पिता, और प्रभु और हियाव दे प्रभु, ताकि और सरगर्मी के साथ प्रभु हम तेरी परिस्थिति करने वाले हो सके प्यारे पिता, क्योंकि तू स्तुति के सिंहासन पर विराजने वाला परमेश्वर है। प्यारे बाप आसमानी, आप जो भी प्यारे पिता तेरे बच्चे अपने हृदय में बोझ लेकर आए प्यारे प्रभु यीशु मसीह, वो है बोझ लेकर जाने ना पाए प्रभु यीशु मसीह। प्यारे बाप आसमानी, हमारी जो भी बोझ है प्रभु प्यारे पिता, ये सिस्टम, ये फरोन के जो हम दास्ता में दबे हुए हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह, यीशु तेरे नाम से दूर और दफा किया जाए प्रभु यीशु मसीह। प्यारे बाप आसमानी, ताकि तेरे बच्चे आजाद हो सकें, और जो हमारे मनों की बेचैनियां रहती हैं किन्हीं भी कारणों से प्रभु यीशु मसीह, वो तेरे नाम से दूर की जाए, क्योंकि प्रभु मनों की बेचैनी तेरे वचन को हमारे हृदय में प्रभु जी फलवंत नहीं होने देता प्यारे पिता। तो
हर एक के हृदय को सर्च कर प्रभु, किसी की जो भी बेचैनी है, परेशानी है प्रभु, यीशु के नाम से दूर और दफा की जाए प्यारे पिता। धन्यवाद करते हैं प्यारे बाप आसमानी, पिछले दिनों में भाई जसमिंदर, भाई इमानुएल को तूने फजल दिया प्रभु आर्मेनिया जाने के लिए प्रभु जी। प्यारे पिता, जितने भाई बहनों से मुलाकात हुई प्रभु यीशु मसीह, तेरे नाम की मनादी हुई है प्यारे पिता, उनके हृदय में तेरा वचन 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना फल लाने वाला हो सके प्यारे बाप आसमानी। और जो भी जरूरतमंद है प्यारे पिता, जिनकी कोई आवश्यकता है यीशु तेरे नाम में, वो पूरी की जाए। भाई आम को प्रभु जी, जो भाई इमानुएल बता रहे थे प्यारे पिता, तू जानता है बेहतर उनकी क्या कंडीशन है प्यारे प्रभु यीशु मसीह। उस भाई को तेरे लहू की सुरक्षा में ले आते हैं प्यारे पिता, क्योंकि तेरे लहू की सामर्थ है प्यारे प्रभु, किसी की और कोई सामर्थ है ही नहीं प्रभु। कोई डॉक्टरों का डॉक्टर भी उसे ठीक नहीं कर सकता, लेकिन तू तो सबका डॉक्टरों का डॉक्टर है। तो प्यारे पिता, क्षमा करने में धनी है प्यारे प्रभु यीशु मसीह। यदि कोई अधर्म और गलती गुनाह भी हमारे जीवन में पाया जाता है तो क्षमा करता है प्यारे पिता। उस भाई को, उसके परिवार, उसके खानदान को तेरे चरणों में लेकर आते हैं प्रभु। अपनी दया में होते हुए आप उनसे डील करें प्यारे प्रभु, और तेरा वचन प्रभु यीशु मसीह उसमें फल लाने वाला हो सके प्यारे पिता। जो भी प्यारे प्रभु यीशु मसीह उनकी आवश्यकताएं हैं प्यारे पिता प्रभु जी, और वो तुझे ढूंढने वाले हो सके, समझ बूझ कर तेरी प्रतीति करने वाले और तेरे पीछे चलने वाले हो सके प्यारे पिता। ऐसा तू फजल प्रदान कर प्यारे बाप आसमानी। जितने भाई बहन यहाँ उपस्थित हैं, हर एक को प्रभु तू अपने आत्मा से मशा कर प्रभु यीशु मसीह, ताकि प्यारे बाप आसमानी तेरी आत्मा में होकर प्रभु यीशु मसीह हम तेरे वचन को समझने वाले हो सके प्यारे पिता। प्रभु हमारी समझों को खोल दे। हम छोटी छोटी समझ लेकर तेरे पास आए हैं प्यारे पिता। हम कोई ज्ञानवान विद्वान नहीं है प्यारे प्रभु यीशु मसीह, लेकिन तूने अपने आप को हम पर जाहिर किया प्यारे पिता। इसके लिए तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। तूने ज्ञानवानों और समझदारों को तुच्छ कर दिया प्रभु, लेकिन जो अनपढ़ अज्ञानी थे प्रभु, तूने उन पर कृपा दृष्टि की और अपने आप को उन पर जाहिर कर दिया प्यारे पिता। इसके लिए तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्यारे बाप आसमानी। प्यारे पिता, हमारे विश्वास को बढ़ा प्यारे बाप आसमानी। आज जो वचन की सेवकाई होनी है प्रभु जी, प्यारे बाप आसमानी, अपने सेवक के होठों को छू प्रभु जी, और प्रभु जी अपनी समझ उसके समझ में रख प्रभु जी, ताकि जो भी प्यारे पिता तू कहना चाहता है प्रभु अपने बच्चों को, जो स्वर्गीय मन्ना देना चाहता है प्रभु, जो जीवन की रोटी खिलाना चाहता है प्रभु, ताकि उस भाई के माध्यम से हम तक पहुंच सके प्यारे पिता। बाप आसमानी, उस भाई का अभिषेक कर प्रभु जी, जो भी तेरे संदेश को लेकर आता है प्यारे पिता। बाप आसमानी, ट्रांसलेशन करने वाले भाई को प्रभु उसके होठों का अभिषेक कर, उसको ब्लेस कर प्यारे बाप आसमानी। अपनी दया, अपनी करुणा में उन्हें बांध ले प्यारे प्रभु। तेरे लहू की सुरक्षा उनके चारों ओर बंधी रहे प्रभु, ताकि कोई भी प्यारे प्रभु दुष्ट की चाल हमारे बीच में कार्य न करने पाए प्रभु। और इसकी तमाम इंटरनेट की और तमाम बातों को प्रभु यीशु मसीह तेरे जरूर हाथों में सौंपते हैं। अपने आत्मा प्राण देह को और अपने मनों का कंट्रोल तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, और इस मीटिंग को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। ये तेरे नाम की है प्यारे पिता, तो इसका चेयरपर्सन है प्यारे प्रभु यीशु मसीह। तो इसकी देखभाल कर प्रभु, तो इसका प्रबंध कर प्रभु, तो इसकी रक्षा हिफाजत कर प्रभु यीशु मसीह। आए हुए हर एक भाई बहन को आशीष दे प्यारे पिता, हर एक की परिवारों को, खानदानों को बड़ी आशीष दे प्यारे पिता। बाप आसमानी, पिछले दिनों तूने हमें से हर एक को अपनी दया, अपनी करुणा में बना के रखा प्रभु, और ये मौका दिया प्रभु, ताकि तेरे चरणों में प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर हम इकट्ठा हो सके प्यारे पिता। हमारा इकट्ठा होना प्यारे पिता तुझे भाने वाला हो सके प्यारे प्रभु। हमारा हर छोटा बड़ा एफर्ट तुझे भाने वाला हो सके प्यारे बाप आसमानी। सब बातें प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हुए, प्यारे अपने आत्मा और प्राण देहों का कंट्रोल तेरे हाथों में सौंपते हुए, प्यारे बाप आसमानी, छोटी सी विनती अपने निज उद्धार करता शीघ्र आने वाले प्यारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे जलाल नाम में होकर मांग लेता हूँ, आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। हमारा विश्वास है कि प्रभु ने हमारी इस प्रार्थना को सुना है, क्योंकि इस प्रार्थना में हम सब ने आमीन किया है, और इस प्रार्थना में जो कुछ भी मांगा गया प्रभु, वो हमारा विश्वास है कि प्रभु हमें वो देने के लिए तैयार है। और प्रभु ये जरूर आस रखता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो हम मांगते हैं, प्रभु हमें जब मर्जी दे, हो सकता अभी दे, 2 साल बाद दे, 6 महीने बाद दे, या ना दे, हर चीज में उसकी मर्जी की हम बाट जोते हैं। उसका नेगेटिव आंसर उसके ना में भी एक हाँ है, क्योंकि उसकी ना हमारे लिए बेहतरी उत्पन्न करती है। क्योंकि हम तो सब कुछ मांगते रहते हैं, जैसे एक बच्चा माँ बाप से सब कुछ मांगता है, बगैर जाने बूझे
कि वो जो मांग रहा है क्या उससे उसको फायदा होना है कि नुकसान होना है। और वो बच्चे की आदत है मांगना। इस प्रकार से हम भी, क्योंकि रूहानी तौर पे अपने खुदावन के, अपने खुदा के, अपने परमेश्वर के की संतान है, उसके बच्चे हैं, तो उसने कहा है तुम मांगते रहो, तुम प्रार्थना में लौलीन रहो, प्रार्थना करना बंद मत करो। प्रे विदाउट सीजिंग, कंटिन्यू टू प्रे ऑल टाइम। प्रभु का आंसर कब आता है हमें इसकी चिंता नहीं है। हम उसका आंसर देखने की चिंता के हिसाब से प्रेयर नहीं करते। हम प्रेयर इसलिए करते हैं कि हमारा काम है प्रेयर करना। जब तक हम में जान है, जब तक प्रभु आता नहीं है, जब तक वो हमें नहीं ले जाता, तब तक हमें प्रार्थना करते रहना है, या जब तक हम जीवित हैं हमें प्रार्थना करते रहना है। तो इसलिए प्रार्थना बहुत जरूरी चीज है, और प्रार्थना हर समय करनी चाहिए। और प्रभु खुश होता है जब हम प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थनाओं का फल जरूर देता है। ऐसा नहीं कि वो प्रार्थना हमारी प्रार्थना से अनजान है या अनसुनी करता है। प्रभु कभी कान नहीं फेरता हमारी प्रार्थना से। हाँ, प्रभु सिर्फ एक परिस्थिति में हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनता है, जब हम जानबूझकर अनसुनी करते हैं, और जानबूझकर उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते, और जानबूझ के पवित्र आत्मा को हम दुखी करते हैं, तो उस समय परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता, जब तक कि हम वापस ना लौटें और अपने मनों को ना फिराएं। उसने इज़राइल को भी कहा, उसने अपने नबियों को भी कहा कि इन लोगों के लिए जो मन नहीं फिराते, जिन्होंने अपने मनों को सख्त किया हुआ है, इनके लिए मेरे से प्रार्थना मत किया कर, क्योंकि जब तक ये मन नहीं फिराते तब तक मैं तेरी भी प्रार्थना नहीं सुनूंगा इनके बारे में। उसने नबी को भी मना कर दिया, तू भी इनके लिए प्रार्थना मत किया कर। ऐसा प्रभु है हमारा। We have to be careful. It is a good news that we can pray. We must continuously pray. We must pray without ceasing. The Lord said that if we ask, we will receive. But we must also know that God receives and hears every prayer. He may answer today, He may answer after some time, or He may not answer. But in all circumstances, we give Him thanksgiving, because His no answer is also an answer. So that's why we continue to pray, but we have to be only careful that we keep our faith, our obedience to God active, and we don't simply claim things from Him without realizing that He is Almighty God. He is our Almighty Father. How much respect, how much honor He deserves from us, how much faithful we need to be to Him. So that's why God will answer all our prayers in all our circumstances, but sometimes He will not hear the prayer. He will not even look towards our prayer. Our prayer will not reach Him because of the sin between us and God. If we are living in sin, our prayers will not reach God, because there is a barrier, there is a wall of sin between God and us. When that wall is removed by faith and by obedience, then our prayers will reach. Our prayers are still reaching, but God is so almighty, He will not respond, because He cannot listen to the prayer where His word is being insulted, His word is not being respected, and where His spirit is being grieved. So we have to pray, we continue to pray in faith and in obedience. So we have to pray in obedience and faith, then our Lord, and in spirit. Which spirit? The spirit which is the God's spirit. There are other spirits also in this world. We don't pray through those spirits. We don't pray to those spirits. Lot of heathen, lot of people who are Gentiles, they preach to those spirits, and they pray to those spirits and try to get some work done through those spirits. We don't run after those spirits. We rebuke those spirits if they come and affect our near and dear ones. So we are very careful. We understand what we are doing. We have prayed for this meeting.
through our brother Surinder, we know our brother who has prayed is a believer. So we know that his prayer God is answering, and we are together on this platform in the same faith. Our prayers God will hear, and God in his own suitable time, God will reply, because God knows our problems, God knows our difficulties. So we believe on him. हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं कि वो हमारी प्रार्थनाएं सुनता है और हमको प्रदान करता है। अब हम कुछ समय देंगे वचन को सुनने के लिए और सुनाने के लिए, और भाई जसविंदर उसका ट्रांसलेशन करेंगे और भाई आर के जोशुआ उस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग करेंगे। बाद में उसको फिर वो यूट्यूब पर भी जो नहीं आ सके हैं या दोबारा सुनना चाहेंगे वो उसको सुन सकते हैं। तो अभी जैसा कि भाई ने प्रार्थना करी, उस प्रार्थना में भाई सुरेंद्र ने कहा कि प्रभु ने हमारे साथ बहुत सारे वादे किए, और उन वादों में उसका एक सबसे इम्पोर्टेंट वादा था जो कि उसने यूहन्ना 14:2 के अंदर और 14:3 के अंदर किया। सिस्टर आप अपना स्पीकर ऑफ कर रहे हैं। सिस्टर संगीता प्लीज आप अपना माइक ऑफ कर लें। ओके, थैंक यू ब्रदर। जी बाय चांस। हाँ जी, कोई बात नहीं, आप अपना माइक ऑफ कर लें प्लीज। आपका माइक अभी भी ऑन है। थैंक यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। तो कई बार अनजाने में रह जाता है, हमें पता नहीं चलता, कोई बात नहीं। तो हम इस बात को हमने सुना कि भाई ने कलाम को जब बीच में कलाम का रेफरेंस दिया कि यीशु ने हमसे कहा, अपने चेलों से कहा कि तुम्हारा मन ना घबराए, और तुमको ये पता है कि मैं कहाँ जाता हूँ, पर मैं भी तुमको बता रहा हूँ कि मैं कहाँ जाता हूँ। और मैं जाता हूँ जिस राह पे अब मैं जाने वाला हूँ, कुछ समय के बाद यीशु मसीह अपने पकड़वाए जाने और अपनी मौत के बारे में, और उसके बाद अपना जीवन त्यागने और गुनाहों का बोझ उठाने के लिए जो उसका प्रोग्राम था इस संसार में, उसकी बात वो कर रहा है। और हम जानते हैं कि उसने ऐसा किया, और उसके बाद परमेश्वर ने उसे महिमा दी और जलाल दिया। नाउ वी आर गोइंग टू start our meditation on this word, and we are going to read first of all, once again, greetings to all brothers sisters in the name of Jesus Christ our Lord. सबसे पहले हम सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सलाम करते हैं। And as we have just heard in the prayer through our brother Surinder, और जैसा अभी हमने भाई सुरिंदर ने जो प्रार्थना की और हमने उस प्रार्थना में सुना that he said that Lord promised to us that he is going to prepare a place for us, and he will come and take us there. और जैसा भाई ने प्रार्थना में ये कहा कि प्रभु ने हमसे वादा किया है कि वो जाएगा और हमारे लिए जगह तैयार करेगा और फिर वापस आएगा और हमें अपने साथ ले जाएगा। We know that there are many comings of the Lord as mentioned in the Bible. और जिस तरह हम जानते हैं कि पवित्र शास्त्र में प्रभु की बहुत सारी आमदों के बारे में बताया है, But there is only one return of the Lord. और एक ही है जो खास है प्रभु की आमद, That is his return. जो कि उसकी वापसी है। His coming is many times, few times. और उसकी जो आमद है वो बहुत बार हुई है, But his return is only one time. लेकिन जो उसकी वापसी है वो अब एक ही बार हो रही है। He came 2000 years ago and was born like a child in a manger in Bethlehem, and then he grew like a young man and he died on the cross for us. वो हजारों साल पहले इस संसार में आया शरीर लेकर, और एक बच्चे के रूप में वो पैदा हुआ और बाकी बच्चों की तरह ही वो आगे बढ़ा। And then he died as a young man on the cross for our sins.
और एक नौजवानी में वो हम सब के पापों की खातिर वो सलीब पर चढ़ा, because he was obedient son, क्योंकि वो आज्ञाकारी था because he committed no sin, और उसने कोई पाप भी नहीं किया था, and he remained as a faithful son to Almighty God, his Father. और वो अपने पिता परमेश्वर का एक आज्ञाकारी पुत्र रहा। In the body form, Jesus Christ was in the form of the Son. और शरीर में जब था तो वह पुत्र कहलाया। That is why every time when he was addressing God, he was calling God his Father. इसीलिए वो जब भी परमेश्वर को पुकारता था तो वो उसे पिता कहता था। Many of our friends and many of the Christian teachings in the world cannot understand this mystery, why Jesus is calling God his Father. हमारे बहुत सारे भाई हैं और हमारे बहुत सारे संस्थाएं हैं और जो ये नहीं समझते कि इसमें कौन सा रहस्य भेद है जो वो पिता कहता है। And they conclude a decision because, see, Jesus is calling God his Father, so the Father is different and Son is different, and they are two people. और वह सिर्फ इतना ही सुनकर एक फैसला ले लेते हैं और वही मान्यता बना लेते हैं कि देखिए ये प्रभु पिता कह रहा है, पिता पुत्र कह रहा है और पिता और पुत्र दोनों अलग अलग हैं। And because Jesus says that Father will send a helper in my name who will come after I go. और जो प्रभु ने कहा है कि मेरा पिता मेरे बाद एक सहायक भेजेगा, पवित्र आत्मा मेरे नाम से भेजेगा। So they conclude that, see, there is another person, that is the Holy Ghost. It is the third person of the Godhead. और इसी को वो पढ़कर फिर एक अकीदा बना लेते हैं कि ये देखिए एक तीसरा भी शख्सियत है जो पवित्र आत्मा है। Because they don't know the word of God. क्योंकि वो परमेश्वर का वचन नहीं जानते। They read the word of God, they memorize the word of God, but the word of God is not revealed to them. वो प्रभु का वचन पढ़ते हैं और प्रभु के वचन को याद भी रखते हैं, लेकिन प्रभु के वचन को समझते नहीं हैं, उन पर प्रभु का वचन नहीं खुला। Most of us, many of us in this world, at different times, we have been in darkness and in blindness spiritually. और हम में से भी बहुत से ऐसे भाई बंधु हैं जो पहले हम भी इस अंधकार में थे। Most of us have come out of this three persons, one God formula. और हम में से बहुत सारे हैं जो इस त्रिएकता की जो तालीम थी उसमें से निकल कर आए हैं। But we thank God that when we were true seekers and true worshippers, then God revealed this mystery upon us. लेकिन हम प्रभु का शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि जो प्रभु के सच्चे भगत हैं उनके ऊपर प्रभु ने अपना ये प्रकाशन प्रकट किया। John 4:24 says that true worshippers will worship God in truth and in spirit. यूहन्ना 4 की हम 24 में पढ़ते हैं कि जहां प्रभु ने कहा कि जब सच्चे भगत आत्मा और सच्चाई से भक्ति जहां करेंगे वहां दुआ कबूल होगी। And they must worship in truth and spirit. और उनके लिए ये लाजमी है कि वो प्रभु की आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। And what is the truth? और सत्य क्या है? Jesus said, I am the truth, the way and the life. प्रभु यीशु ने कहा कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूँ। The words of God, the words of Jesus Christ are the truth and life. प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है वो सत्य है। And how do we understand those words? और हम प्रभु के वचन को कैसे समझें? Not just by reading this book, Bible, सिर्फ बाइबल को पढ़ लेना काफी नहीं है।
We must read the Bible in spirit. हमें प्रभु के वचन को, बाइबल को आत्मा के साथ पढ़ना है। How do we get connected with the spirit when we read the Bible? और जब हम ये बाइबल पढ़ते हैं, हम प्रभु के पवित्र आत्मा से कैसे जुड़े? God knows if we are the true seeker. प्रभु जानता है क्या कि हम सचमुच उसको सच्चाई से ढूंढ रहे हैं कि नहीं। Why am I reading the Bible? कि मैं ये बाइबल किस मकसद से पढ़ रहा हूँ, Why am I praying? और मैं प्रार्थना क्यों कर रहा हूँ। Am I praying only to get some benefit from God? क्या मैं सिर्फ इसलिए बाइबल पढ़ रहा हूँ कि परमेश्वर से सुख सुविधाएं लूं? Am I praying for a physical miracle in life? क्या मैं सिर्फ इसलिए बाइबल पढ़ रहा हूँ कि ये संसारिक मुझे वस्तुएं चाहिए और चमत्कार चाहिए मुझे? Am I looking for some good benefits of this world when I'm in this world? जहाँ मैं जब तक इस संसार में हूँ, मुझे इस संसार की ऐशो आराम चाहिए, इसलिए पढ़ रहा हूँ? Or am I reading Bible in spirit and in truth so that my soul may be saved? जहाँ मैं इसलिए बाइबल पढ़ रहा हूँ कि मैं अपना उद्धार, अपने जान का, अपनी सोल का उद्धार करा सकूं और आत्मा और सच्चाई से पढ़ूं। How much I may try, how much I may effort, how much rich I am, how much powerful I may be, can I gain the whole world? मैं कितना अमीर हूँ, कितना ताकतवर हूँ, कितना प्रसिद्ध हूँ, क्या इससे मैं उद्धार पा सकता हूँ? Can I gain the whole world by my richness and power and authority? क्या मैं अपनी सामर्थ, ताकत, अमीरी से सारा संसार प्राप्त कर सकता हूँ? Even the richest man in the world or richest people in the world cannot claim that they have acquired whole world. यहाँ तक कि इस संसार के सबसे अमीर व्यक्ति भी ये नहीं कह सकते कि वो सारा संसार जीत चुके हैं। And Bible says even if they are able to win, which is not possible, बाइबल कहती है कि चाहे वो जीत भी लें, लेकिन हालांकि ये मुमकिन नहीं है। even if they were able to acquire the whole world, चाहे वो इसके लायक भी हों जीतने के, and they have not lost, and they have lost their soul, लेकिन अगर उन्होंने अपनी जान का ही नुकसान उठा लिया, they have gained nothing. तो उन्होंने कुछ भी नहीं पाया। Because even if they acquire the whole world and things of the world, when they die, everything will stay here and will be destroyed. जैसा प्रभु ने कहा कि चाहे एक मनुष्य सारा संसार जीत ले, लेकिन अपना जान का ही नुकसान उठा लिया तो उसे क्या फायदा हुआ? सब कुछ All छूट the गया। money, the houses and the buildings and the bank balances and name and fame will stay back here and will be destroyed. जितने भी प्रसिद्धि, जितना भी धन दौलत, पैसा, ऐशो आराम, ये सारा का सारा मरते सार ही खत्म हो जाएगा। All these things we need in the minimum quantity, in the minimum amount, just to survive in this world as long as God wants to keep us here. हालांकि हमें जीवित रहने के लिए जितना पैसा, जितना ऐशोराम चाहिए, कम से कम जितना चाहिए उतना प्रभु अपने लोगों को देता है और हमारे पास है। But we are not happy, we are not satisfied with this. लेकिन हम जो हैं, हम संतुष्टि नहीं होते उसमें, हम और चाहते हैं। We are every day in the competition, in the race, what the other man is getting, what the other man is acquiring. Am I better than that person? This is our race every day. हर रोज हम सबकी दौड़ है कि हम दूसरों से आगे क्यों नहीं है, हमारे पास दूसरों से ज्यादा क्यों नहीं है, जो उनके पास घर गाड़ी है हमारे पास उनसे बेहतर क्यों नहीं है। ये सब की रेस है आज। See, all our thinking is physical and worldly.
देखिए ये सारी हमारी जितनी भी सोचें हैं कितनी संसारिक हैं। Most of our prayers are centered for physical gain. ज्यादातर हमारी प्रार्थनाएं जो होती है वो इस संसारिक वस्तुओं के ऊपर टिकी होती हैं। God, give me more money, प्रभु मुझे ज्यादा पैसा दे, good health, अच्छी सेहत दे, good job, good family. अच्छी नौकरी दे, अच्छा परिवार हो। If you give me all this, God, you are a good God. I am very happy. अगर प्रभु आपने मुझे ये सारी चीजें दे दी तो फिर आप बहुत अच्छे परमेश्वर हैं। And don't stop giving. Continue to give me. और ये देना बंद ना करें, इसे लगातार मुझे देते रहें। Because these things, because they are physical, so naturally, if I receive a lot of money today, after some time that money will be spent, and again I will be poor man. क्योंकि जब तक मैं इस संसार में हूँ मुझे पैसा चाहिए, और जो अभी देगा प्रभु उसे मैं जरूरी है खर्च कर दूंगा, उसके बाद मुझे फिर चाहिए, नहीं मिला तो मैं गरीब हो जाऊंगा। I need more money, more food, more health, more things. मुझे तो ज्यादा पैसा, ज्यादा ऐश्वर्य, ज्यादा खाना, ज्यादा कपड़ा, सब कुछ ज्यादा चाहिए। My house may be full of grocery today, but after 1 month it will be empty. मेरा घर पूरी तरह राशन से भरा होगा लेकिन अगले महीने फिर खाली हो जाएगा। But all this is physical request I am making to God. लेकिन ये सारी की सारी जो है ये संसारिक जरूरतें हैं जो मैं प्रभु से मांग रहा हूँ। And these things are finishing every day. ये तो हर रोज खत्म होती है। So I am praying, मैं प्रार्थना करता रहता and हूँ God is giving. He is faithful God. क्योंकि प्रभु भी भला प्रभु है, वो भी देता है। How many times do I pray to God, Lord, save my soul? लेकिन मैंने जीवन में कितनी बार ये प्रार्थना की कि प्रभु मेरी जान बच जाए, मेरी मुक्ति हो जाए। Because the eternal life which I will receive after redemption of my soul, it will not become weak, it will not finish, it will not become less. क्योंकि अगर मैंने प्रभु का अनुग्रह वो मुक्ति उद्धार पा लिया तो ये फिर मेरा अंदर का आत्मा, मेरी अंदर की सामर्थ, मेरी जान, मेरी सोल ये खत्म नहीं होगी। The word itself is eternal life. और जो वचन है उसके अंदर खुद एक अनंत का, हमेशा का जीवन है। Eternal means it will never become sick, it will never die, it will never reduce, it will never finish. अनंत जीवन का अर्थ है कि जिसका अंत नहीं, जिसकी मृत्यु नहीं, जो हमेशा रहेगा। That should be our prayer. ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। And when I make that prayer, then I am making that prayer in the right spirit. और जब मैं ये प्रार्थना करता हूँ, करूंगा तो मुझे इस प्रार्थना को सही आत्मा में करना है। And then I will follow the word of God, which is the truth. तब मैं परमेश्वर के वचन के पीछे चलूंगा जो कि सत्य है। Then my worship is acceptable to God. तब मेरी भक्ति, मेरी आराधना जो है प्रभु के घर में कबूल होगी। And then I am a true worshipper. तब मैं एक सच्चा भगत बनूंगा। And Jesus said, और प्रभु ने कहा, for such people, जो लोग, the people of this kind, the people of this type, और इस तरह के लोग, Jesus said that I will never leave you and never forsake you. मैं ना तुम्हें कभी छोड़ूंगा ना तुम्हें कभी त्यागूंगा। आमीन। I will be with you until the end of this age, and I will be in you. मैं तुम्हारे साथ जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँगा, बल्कि तुम्हारे अंदर रहूंगा। आमीन। How Jesus is inside us. प्रभु यीशु किस तरह हमारे अंदर रहता है? The spirit that was upon Jesus, जो पवित्र आत्मा प्रभु के ऊपर था, which spirit that kept him obedient and without sin,
जिस आत्मा ने उसे पापों से दूर रखा, पाप रहित रखा, and the Spirit that glorified him on the third day, और जिस पवित्र आत्मा ने उसे तीसरे दिन मुर्दों से जीवित किया, the same Spirit must be in us. वही पवित्र आत्मा हमारे अंदर होना चाहिए। Then everything will happen to us, whatever happened to Jesus. तो जो कुछ प्रभु यीशु के साथ हुआ वही हमारे साथ होगा। The end result which happened to Jesus will be our end result also. और जो यीशु मसीह के साथ हमने देखा शरीर में आखिर तक उस आत्मा ने किया, वही अंत तक हमारे साथ भी वही होगा। That is how he promised for such people. और यही है जो उसने ऐसे विश्वासियों के लिए प्रार्थना की। I am going to prepare a place for you. मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ। I must go to prepare a place for you. मुझे जाना है, तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाना है। How will he prepare the place for us? वो हमारे लिए किस तरह जगह तैयार कर रहा है? Let us open John chapter 14. आइए हम यूहन्ना की अंजील को और उसके 14 अध्याय को खोलें। And in the first verse and second verse and the third verse, he is giving this promise. और उसने पहली और दूसरी और तीसरी आयत में ये वादा किया है। In the first verse, he is giving them assurance. पहली आयत में वो वादा कर रहा है, He is giving them a guarantee. यहाँ पर वो पूरी तरह से गारंटी दे रहा है। He says, first of all, my assurance is, let your heart not be troubled. जो प्रभु पहले आयत में वादा कर रहा है कि तुम्हारा मन जो है वो कभी भी व्याकुल ना हो, Because you believe in God and believe also in me. क्योंकि तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो तो मुझ पर भी रखो। If you believe in God, अगर तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो you must believe in Jesus. तो तुम्हें परमेश्वर मुझ पर भी विश्वास रखना है। Again, 2 Sundays, 3 Sundays before, Brother Surinder had quoted a verse from the Bible. कुछ समय पहले भाई सुरेंद्र ने ऐसे ही फिर आयत बताई थी एक, I think it was John chapter 8. और मेरा ख्याल है वो यूहन्ना 8 में से थी। Because Jesus said that if you don't believe, then I am He, then you will die in your sin. यहाँ प्रभु यीशु ने जब कहा है कि अगर तुम विश्वास नहीं रखोगे कि मैं वही हूँ तो अपने पापों में मरोगे। So who is He? तो वो कौन है? In this world, in the human body, He is Son of God. क्योंकि वो इस शरीर में जब था तो वो परमेश्वर का पुत्र है। But how He became in the body the Son of God? लेकिन वो इस शरीर में परमेश्वर का पुत्र कैसे था? Because the Word of God took the shape of a human body. क्योंकि परमेश्वर के वचन ने ही इस संसारिक शरीर को लिया था। It is the Word becoming flesh. और ये वचन ही था जो देहधारी हुआ। And then when it becomes flesh, it is called Son of God. और जब वचन शरीर लेकर आया वो शरीर पुत्र कहलाया। Before getting the human body, it was the Word of God, which is Logos. जब उसने शरीर नहीं लिया था तो यही वचन जो था ये लोगोस था। And by this Logos only, and that Logos was God. और ये लोगस जो था यही परमेश्वर था। John 1:1 says, Word was God. यूहन्ना 1:1 बताता है कि वचन परमेश्वर था। So in the beginning, when God was from eternity, and in the beginning when God was creating, there was no Son. और आदि में जब ये परमेश्वर वचन ने संसार की सृष्टि की उत्पत्ति की तब उस वक्त पुत्र नहीं था।
So when we read in the New Testament, all things were created by him and for him. नए नियम में ये लिखा है कि सारी सृष्टि उसके पुत्र के द्वारा और उसके पुत्र के लिए हुई। But who is that son? फिर ये पुत्र कौन है? Was the son creating the world as a son? क्या पुत्र ने पुत्र के रूप में ही सारा संसार रचा था? We know the son was not existing. Son was born 2000 years ago on earth. हम जानते हैं कि पहले पुत्र नहीं था, पुत्र तो 2000 साल पहले आया। Son was the word, जो सन पुत्र था वो वचन था, and word is the spoken form of God's thought by speech. जो वचन था वो परमेश्वर का बोला हुआ, मुंह से निकला हुआ वचन था। And that spoken word created the world. जो परमेश्वर ने मुंह से वचन बोला, उस वचन ने शरीर लिया। Before that word was spoken, it was in the mind of God. इससे पहले परमेश्वर वो वचन मुंह से निकालता, वो वचन परमेश्वर के मन में था। In eternity, this thought was in the program or in the mind or in the conscience of God Almighty. और ये वचन जो था सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर की प्लानिंग में, उसके सोच में, उसकी योजना में था। But in the beginning, it became a spoken word. लेकिन शुरुआत में ये यहोवा यूं बोलता वाला वचन था। And divinely, it is called Logos. और आत्मिक रूहानी तरीके से इसे लोगस बोला जाता है। So Logos did the creation of the world. तो लोगस ने इस संसार की रचना की। And that Logos itself was God. ये लोगस ही जो है ये प्रभु परमेश्वर है। We cannot separate the word of God and God. हम प्रभु को, प्रभु परमेश्वर को और उसके मुंह से निकले हुए वचन को, दोनों को अलग अलग नहीं रख सकते। That is why in the Gospel of John chapter 1, John the apostle, he received the revelation that the word was God. इसीलिए जो प्रभु का दास योना हुआ, उसको ये प्रकाशन मिला कि प्रभु जो था वो वचन था। Now Jesus is telling his disciples as a son here in John chapter 14. तो प्रभु यहाँ योना 14 में जो बता रहा है, He is telling, you believe in God, believe also in me. तो प्रभु यहाँ कह रहा है कि तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी रखो। So if I am a disciple of Jesus Christ, I must be a believer in God and I must be a believer in Jesus Christ, who Jesus Christ is. तो अगर मैं प्रभु यीशु मसीह का चेला हूं, तो मुझे भी ये ईमान विश्वास रखना है कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। If I understand that Jesus Christ and God are two different persons of Godhead, then my understanding is not good. अगर मैं ये विश्वास रखता हूँ कि परमेश्वर पिता और अलग चीज है, शख्सियत है, और पुत्र अलग शख्सियत है, तो मेरा विश्वास, मेरी सोच बिल्कुल गलत है। As long as Jesus was in the human body, और जब तक यीशु मसीह बदन में था, शरीर में था, he was in the office of the Son. वो उस वक्त पुत्र के दफ्तर में कार्यशैली He में था। was the manifestation of God in the Son in the human body. वो परमेश्वर का वो वचन जो था वो पुत्र के रूप में उस कार्यशैली में था। Or we can understand like this, that the soul and spirit of Jesus Christ was God himself. हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जो सोल और जो आत्मा है वो प्रभु यीशु मसीह में था है। And the body of Jesus Christ was like our body, made of flesh and bones. तो जो यीशु मसीह का बदन था वो वही बदन है जैसा हमारा बदन है।
But he was an honest and obedient and faithful soul carrying the Spirit of God. लेकिन वो जो जान थी वो पूरी तरह ईमानदार और आज्ञाकारी जान थी पिता की। Jesus Christ was a full man walking on the streets of Jerusalem and Bethlehem like you and me walking on our streets. यीशु मसीह इसीलिए पूरी तरह से एक मनुष्य भी था जो बैतलहम में यरूशलेम की गलियों में सड़कों पे चला। He was not like a ghost or a spirit walking on the streets. ये ऐसा नहीं कि वो कोई आत्मा था जो दिखाई नहीं देता था। He used to sleep, he used to have pain, he used to talk, he used to feel hungry, he was thirsty. वो भी भूखा रहा, वो भी प्यासा रहा, वो भी सोया। He was full human like us. वो पूरी तरह इंसान के रूप में था जैसा हम हैं। If he was not full human, if God was not full human in the human form, then how God expects us to behave? अगर वो मनुष्य शरीर में ना होता तो परमेश्वर किस तरह उससे उम्मीद रखता एक आज्ञाकारी की। But God gave himself a body. तो इसीलिए परमेश्वर ने एक शरीर लिया। If we read just for our reference Hebrews chapter 10, इसके लिए हम थोड़ा सा इब्रानियों की किताब में जाएंगे और उसका 10 अध्याय में जाएंगे इब्रानियों। and we will read the verse 5 and 6. और हम उसकी 5 आयत और 6 आयत पढ़ेंगे, इब्रानियां 10 और उसकी 5 और उसकी 6। Here Paul is writing, the writer of the Hebrew is trying to compare between the Old and the New Testament. यहाँ पर संत पौलुस जो है वो पुराने नियम और नए नियम में कंपैरिजन बता रहा है। He is talking about the animal and the bird sacrifices which were being done according to the law of Moses in the Old Testament. वो बता रहा है कि पुराने समय में मूसा की शरा के मुताबिक कि जानवरों की जो कुर्बानी दी जाती थी वो उसका और नए नियम के कंपैरिजन कर रहा है। It was started, it was given, it was instituted to tell human beings, to tell man that you are a sinner and there is blood required for the purification of your sin. तो इसलिए किया जाता था कि जो इंसान एक पापी है और उसके पापों के लिए कुर्बानी की जरूरत है। Because the blood was running in the genes, in the DNA of the human being, and that the sin was running in the blood, which was the DNA. क्योंकि जो पाप होते थे वो मनुष्यों के खून में होते थे। Now, in order to remind them about their sins, there was sacrifices being done. इसीलिए वो अपने पापों की माफी के लिए कुर्बानी देते थे। No, there was no forgiveness, not for forgiveness, but for a reminder. लेकिन इस कुर्बानी से पापों की माफी नहीं होती थी। Let us read chapter 10, verse 3. और आइए हम 10 की 3 पढ़ें। But in those sacrifices, there is a reminder of the sins every year. यहाँ लिखा है परंतु उनके द्वारा प्रति वर्ष पापों का समान हुआ करता था। Now you see, they were sacrificing so many animals and birds, maybe hundreds of them every year. यहाँ देखिए कुर्बानी दी जा रही है, पता नहीं कितने 100 की कुर्बानी दी जाती थी। But still that sacrifice could not help them to remove the sins from their life. लेकिन इन कुर्बानियों के बावजूद भी उनके पापों की माफी नहीं थी। Because these sacrifices they were doing, that sacrifice will remind them that they are still a sinner and they must do, and they are remaining a sinner even though they are doing the sacrifice. तो ये कुर्बानियां जो देते थे ये सिर्फ याद दिलाती थी
कि वो सब पापी हैं और प्रतिवर्ष इसको करते थे ताकि वो याद रखें कि वो पापी हैं। These sacrifices were not able to remove or help them in their sin. तो ये कुर्बानियां उनके पापों को साफ करने में कोई मदद नहीं करती थी। If we read chapter 4, verse 4, chapter 10, Hebrew, हम अगली आयत 4 आयत पढ़ें। it is not possible that the blood of bulls and goats will take away your sins. क्योंकि ये अनहोना है, नामुमकिन है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। Now you see the writer of Hebrew is saying something very important in verse 5. तो आपने देखा कि ये जो प्रभु का दास है, इसने तो 3 और 4 में कितनी महत्वपूर्ण बात बोली है। Now in verse 5 he is declaring the mystery. अब जाके 5 आयत में वो एक बड़ा भेद बता रहा है। Fifth verse says, 5 आयत में लिखा है, therefore when he came into this world he said. इस कारण मसीह जगत में आते समय कहता है। What is he saying? क्या कहता है? Now these words, verse 5, these words of the 5, 6 and 7 are the quotation from the Old Testament. अब देखिए 5 और 6 और 7 आयत जो हवाला लिया उसने पुराने नियम का लिया है। Because Paul was referring to the Old Testament about the blood of goats and bulls and sacrifices. क्योंकि वो हवाला ले रहा है जो बैलों का, बकरों का जो कुर्बानियां दी जा रही थी उनका रेफरेंस ले रहा है। He says, sacrifice and offering you did not desire. और लिखा है बलिदान और भेंट तूने ना चाहिए। So what do you want? What he wants? तो प्रभु क्या चाहता था? Then he continues, तो लगातार आगे पढ़े। but a body you have prepared for me. पर मेरे लिए एक देह तैयार की। Who is talking? किसके बारे में बात हो रही है? It is the word of God talking. ये प्रभु का वचन बात कर रहा है। The word of God is talking that a body is prepared for the word. प्रभु का वचन बता रहा है कि एक देह तैयार की है, शरीर तैयार And किया है। that body was called, when the body became the living soul, that body is called Jesus. तो ये जो शरीर तैयार किया, जब ये जीवित हुआ तो इसको यीशु कहा गया। But who made that body? तो परंतु इस शरीर को किसने बनाया? Eternal God, who is the Spirit, He made that body. अनंत काल का प्रभु परमेश्वर जिसने ये देह रची, ये शरीर बनाया। The God who could create everything in this world by His spoken word, by the Logos, He also made this body. जिस प्रभु परमेश्वर ने, जिस लोगस ने ये सारा संसार रचा, उसी लोगस ने, उस प्रभु ने ये देह रची। But this was a special body. परंतु ये वाला बदन जो है ये खास है। Because this body remained faithful and sinless and was used as a sacrifice for our sin. क्योंकि ये वाली जो देह थी, शरीर था, ये आज्ञाकारी रहा, ये पापों से दूर रहा, ये शुद्ध रहा और ये कुर्बानी सबसे बेहतर कुर्बानी थी। Paul is trying to teach a lesson to those people who were still believing in the sacrifices of the animals and birds. तो पौलुस जो था ये उन लोगों को समझा रहा है जो लोग विश्वास कर रहे थे कि अभी भी जानवरों की कुर्बानी देनी है पापों के लिए। Paul is telling them that this man Jesus is the body that God made for the sake of our sin. तो संत पौलुस बता रहा है कि प्रभु परमेश्वर ने हम सब पापियों के लिए ये सिर्फ एक देह तैयार की है।
In verse 6, he says, in burnt offering and sacrifices for sin, you had no pleasure. आगे 6 आयत में लिखा है कि होम बलियों और पाप बलियों से तो प्रसन्न नहीं होता। So what we understood from these verses, तो हम इन आयतों से क्या समझे हैं? God especially created a body which is called Jesus, which is called Son of God in the human form, for the sake of remission of our sin. पिता परमेश्वर ने एक देह तैयार की, एक बदन तैयार किया जो हम सब के पापों की खातिर वो सलीब पर चढ़ा। This is the purpose of Jesus coming into this world. ये था मकसद प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में आने का। Now, if we go back to John chapter 14, अब वापिस हम यूहन्ना 14 में आए। now he says that you believe in God, believe also in me. तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. मेरे पिता के घर में बहुत से रहने को स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता। There are places where you can live in my Father's kingdom. वो जगह है जहाँ तुम रह सकते हो, जो मेरे पिता के घर पे है। अगर मैं तुमसे, I am not telling lies. If it was not so, I would have told you. अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, मैं झूठ ना बोलता। That you will have a place in my Father's house. तुम्हारे लिए मेरे पिता के घर में रहने को स्थान है। Now who is talking? कौन बात कर रहा है? The Son is talking. यहाँ बेटा बात कर रहा है। That is why he is using the word Father. इसीलिए वो पिता बोल रहा है। Who is the Father? अब पिता कौन है? Father is the Holy Spirit. पिता पवित्र आत्मा है। And that Holy Spirit which is inside the body of Jesus is talking. जो प्रभु पवित्र आत्मा जो उसके अंदर है वो उसको कह रहा है। Jesus always listened to the voice of that Holy Spirit which was inside him. प्रभु यीशु मसीह हमेशा ही पिता पवित्र आत्मा की अगुवाई में था, आज्ञाकारी था जो उसके अंदर था। Jesus was a human like you and me. यीशु मसीह शरीर में आपकी और मेरी तरह था। When he was born, he became a living soul like you and me are living soul. जब वो संसार में आया वो आपकी और मेरी तरह ही था। So when Jesus is talking, he is the living soul of Jesus is talking, like you and me talking. जब यीशु आया तो वो हमारे और आपकी तरह ही वो उसने बातें की। But he is obedient to that spirit of the Father which was inside him. लेकिन वो उस पिता परमेश्वर का आज्ञाकारी रहा जो आत्मा में उसके अंदर था। This is the mystery which we understand, brothers and sisters. ये भेद है भाई और बहनों जो हम लोगों को समझना है। Those who don't understand this mystery, those who have not received the grace of God, they are still in blind spiritually and they are making father and son two different people. और जिन लोगों के ऊपर ये प्रकाशन नहीं खुला वो आज भी अंधकार में जी रहे हैं, जो ये मानते हैं कि पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा ये अलग अलग है। He says, I go to prepare a place for you. वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। Verse 3, if I go to prepare a place for you, I will come again and receive you to myself. 3 आयत, यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो मैं फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहो। Think about this promise. इस वादे के बारे में सोचे। If the number one king of this world comes and tells me personally that I am preparing a place for you in my palace and my kingdom, and I will make sure that you will live with me forever. अगर इस संसार का सबसे बड़ा राजा आकर मुझे कहे
कि आओ मैंने तुम्हारे लिए अपने राज्य में तुम्हारे लिए घर रखा है, तैयार किया है। तो सोचिए, Even if there is a king like this, और अगर वो राजा हो, सोच के देखें, first of all, we know that there cannot be a king who is the king of the whole world. तो हमें पहले पता होना चाहिए कि सारे संसार का राजा कौन है। The temporary king of this world is the devil. जो थोड़े समय के लिए जो अभी राजा है इस संसार का, वो शैतान है अभी। He has taken over the world as an illegal possession. तो उसने गलत तरीके से इस संसार पर राज्य किया हुआ है। And he is posing to be the king of the world, and he even came to offer Jesus that I will give you the whole world. तो उसने सारे संसार के जो बड़े बड़े लोग हैं उनको भी कब्जे में किया हुआ है। वो तो प्रभु को भी कहता था कि मेरा सिजदा कर, ये सारा संसार मैं तुझे देता हूँ। Think about devil who is going to be destroyed is offering to God. अब देखिए, शैतान जिसने सारा बर्बाद किया है, आगे भी करेगा, वो यीशु को कह रहा है। And we get into the influence of the same devil when we start listening to him. और हम भी जब शैतान को सुनना शुरू कर देते हैं तो हम भी उसकी चालों में आ जाते हैं। Even if he's telling that I will give you the whole world, but can the world survive? Can the world live for all times? अगर वो कहता है कि मैं सारा संसार तुम्हें दे दूंगा, तो क्या ये संसार टिकने वाला है? क्या Is the संसार devil रहने going to वाला? live forever? क्या शैतान खुद भी हमेशा के लिए रहने वाला है? So is his kingdom going to live forever? उसका राज्य हमेशा रहने वाला है शैतान का। So if he is not going to live and his kingdom is not going to live forever, then what is he offering? तो अगर वो खुद नहीं रहने वाला, उसका राज्य हमेशा नहीं रहने वाला, तो वह ऑफर देखिए क्या करेगा। His promise is not true, उसके वादे झूठे हैं, but the promise of our Lord is true. लेकिन हमारे प्रभु परमेश्वर का वादा ही हमेशा सच्चा Because है। our Lord is the God we worship. क्योंकि हमारा प्रभु परमेश्वर ही परमेश्वर है जिसकी हम उपासना करते He हैं। is our creator. वो हमारा रचयिता है, We follow him. हम उसकी उपासना करते हैं, उसके We पीछे believe चलते he हैं। is coming to take us. हम विश्वास करते हैं वो हमें लेने आ रहा है। And he says, the place I am preparing for you, उसने कहा कि जो मैं जगह तुम्हारे लिए तैयार करने जा रहा हूँ, and if I go and prepare a place for you, I will come back and take you. अगर मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ तो मैं एक दिन वापिस आऊंगा तुम्हें That is why the children of God, the bride of Christ, is waiting for the return of the Lord, not only for the second coming of the Lord. प्रभु के बच्चे, प्रभु के ईमानदार विश्वासी प्रभु की आमद का इंतजार कर रहे हैं। They are waiting for his return. वो उसकी वापसी का इंतजार कर रहे हैं। Why? क्यों? Because they read this scripture and believe this scripture. क्योंकि वो प्रभु के इस वचन को पढ़ते हैं और इस पर विश्वास भी करते हैं। My Lord says, I must go to prepare a place for you. हमारे प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ। How is he preparing the place? वो किस तरह कर रहा है तैयार? He is making a way for us to go to that place where we cannot go today. वो हमारे लिए रास्ता बना रहा है वो वहां तक पहुंचने का जिस पर हम अपने तरीके से नहीं जा सकते। Why we cannot go there? हम क्यों खुद से नहीं जा सकते? Because the sin is separating us from God. क्योंकि पापों ने हमें प्रभु से दूर किया। When Jesus says, I am going to remove that sin which is separating you from God, प्रभु ने कहा कि मैं उन पापों को तुमसे दूर कर दूंगा जो तुम्हें और पिता को अलग करते हैं। then you will get the entry into those mansions which are in my Father's house.
तब तुम्हें जाकर उस जगह पर उस घर में दाखिला मिलेगा जिसका मैंने वादा किया है। Jesus said, no one can come to Father except through the Son. प्रभु यीशु ने कहा, कोई भी पिता के पास मेरे बिना नहीं पहुंच सकता। And Son is preparing a way for us to go back to the Father through his death, burial, and resurrection. तो प्रभु यीशु मसीह ने वो मार्ग, जब वो शरीर में आया, उसने कलाम दिया, हमारे खातर कोड़े खाए, सलीब पर चढ़ा और तीसरे दिन जिंदा हो गया, हमारे लिए रास्ता बनाया। This promise of preparation of mansions in God's house for us will not complete unless Jesus will take away our sins. और हमारा ये रास्ता स्वर्ग का ना बनता जब तक यीशु हमारे पापों को ना उठाता। Our sins are blocking the way to mansions. हमारे पापों ने वो रास्ता हमारा बंद कर रखा था। And then he says, I will come back. I will first prepare that way. I will clear that blockage. I will do what I have to do. Then I will come and take you. उसने कहा कि पहले मैं रास्ता बनाऊंगा, सारी मुश्किलें, रुकावटों को दूर करूंगा, फिर मैं वापस आऊंगा। So that where I am, you will also be. ताकि जहां मैं रहूंगा वहां फिर तुम भी रहोगे। And then we know in the 4th verse he says, और चौथी आयत में प्रभु ने कहा, and where I go you know, and the way you know. कि जहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। And there was a man who was always a doubting disciple. और हमेशा ही एक चेला होता था जो शक करता था। Now he is asking because he did not understand what Jesus just now said. वो पूछता है क्योंकि वो समझ नहीं पाया कि प्रभु क्या कह रहा है। So he says, Lord, we do not know where are you going and how can we know the way? तो वो पूछता है कि प्रभु हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है और तेरा मार्ग कैसे जाने। This is the human wisdom. ये जो है ये मनुष्यों की समझ है। This is how people are asking what will be those mansions in the heaven, whether it will be 2-bedroom or 3-bedroom or 4 BHK or 5 BHK bedroom there. तो लोग जो है जो मनुष्य समझ के मुताबिक पूछते हैं, समझते हैं कि क्या वहाँ कमरे बने हुए हैं, क्या 2 कमरे बने हैं या 3 कमरे बने हैं, इस तरह का। Will I get a house according to the size of my family? तो वो ये समझते हैं कि जितना बड़ा परिवार है उसके मुताबिक वहाँ घर होगा। Will I be living separately as my separate family in this world? जिस तरह मैं इस संसार में अपने परिवार से अलग रहता हूँ, क्या वहाँ पे भी मुझे अलग मिलेगा? If I have 3 children and we are husband wife, do we get a 4-bedroom house or 5-bedroom house as a family? लोग कहते हैं कि अगर हमारे यहाँ पर 4 बच्चे हैं, अगर हमारे पास बच्चों का अलग रूम है तो क्या वहाँ पर भी हमें बच्चों का अलग रूम मिलेगा? Brothers and sisters, we need to come out of this physical dimension. भाई और बहनों, हमें इस संसारिक सोच से बाहर आना है। There will not be family houses and family wise houses in heaven. तो ये ऐसा नहीं है कि वहां पर कोई परिवार के घर अलग बने हैं, दूसरे घर अलग बने हुए हैं, ऐसा नहीं है। There will be only one family, the children of God. वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक परिवार है और वो है प्रभु का परिवार। All the saints of the Old and the New Testaments together, they will be one family of God. जो भी पुराने नियम के संत हुए हैं, नए नियम के संत हैं, हम सब मिलकर एक परिवार होंगे। There will be no your and mine in the heaven. वहां स्वर्ग में तुम्हारा मेरा ऐसा नहीं चलेगा। There will be no my child and your child, my wife and your wife. This concept will not be in heaven. स्वर्ग में ऐसा नहीं होगा, ये मेरा बच्चा है, ये तुम्हारा बच्चा, ये मेरा परिवार, ये तुम्हारा परिवार है, ऐसा नहीं है। These relationships are the relationships in the world.
जो ये सब कुछ जो अभी है ये सिर्फ जमीन पर ही रह जाएगा। In the eternity, अनंत जीवन में even the relationship between the Father and Son will not exist. जो संसार में पिता पुत्र का जो रिश्ता होता है स्वर्ग में वो नहीं होगा। And even the divine relationship between God the Father and the Son will not exist in eternity. जो भी अभी संसार में भी रिश्ता है एक परमेश्वर पिता का पुत्र का वो भी स्वर्ग में वो नहीं होगा। Jesus will not be living in heaven as a son. क्योंकि स्वर्ग में यीशु पुत्र के रूप में नहीं है। We will read one scripture before we close. इससे पहले आज की सभा हम क्लोज करें, हम एक आखिरी आयत पढ़ेंगे। We will read that scripture itself will tell us what will be जो- happening to what will happen to son. तो जो हमें बताएगा कि उस वक्त क्या होगा। Many people are preaching, many Christian churches are preaching, Jesus will become our elder brother in the heaven. बहुत सारे चर्च ये भी प्रचार कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में हमारा बड़ा भाई की तरह होगा। Because they have basically not understood who is Jesus. क्योंकि वो समझ ही नहीं पाए कि यीशु कौन है। So if I don't understand the first chapter, how can I understand the fourth, fifth, and the 10th chapter? अगर मैं पहला ही चैप्टर अध्याय नहीं समझा तो मैं तीसरा चौथा कैसे समझूंगा। If I don't know the beginning about the son, how will I know the end about the son? अगर मैं शुरुआती ही नहीं समझ पाया कि पुत्र कौन था तो अंत क्या समझ पाऊंगा। So Thomas, who still doesn't know what Jesus is talking about, तो थोमा जब समझ नहीं पाया कि यीशु कौन था he's asking him, we don't know where you are going and what is the way. वो कहता है मैं नहीं जानता तू कहाँ जाता है, तुम्हारा कैसे जाना। Because Thomas was thinking there is a way, like a street or a road or a highway. Jesus is going to walk on that one. क्योंकि थोमा समझा वो भी संसारिक समझ से कि कोई सड़क जाती होगी And through that road, he will go, and then he will take us also on the same road. तो उसने सोचा कि कोई सड़क जाती होगी जो उस स्वर्ग की ओर जाती होगी जिसे वो पकड़ ले। This is how most of us think about heaven like this. तो आज भी हम अपने संसारिक समझ में बहुत सारे केवल इस तरह ही सोचते हैं। In the book of Revelation, when John has got a vision and he saw the things about the heaven, and he had to express the human language about the streets of gold and street of glass in heaven. तो योना ने जब प्रभु ने प्रकाशन उस पर खोला तो उसने स्वर्ग की बहुत सारी चीजें देखी, सड़कें और जमीन देखी, उसने स्ट्रीट देखी, लाइटें देखी, तो उसने वहां बयान किया। John saw these things in his vision. योना ने वो सारी चीजें जो देखी थी प्रभु ने उसे विजन के द्वारा दिखाई। John was seeing these things in a vision as a human being. तो योना ने एक मनुष्य होने के नाते वो सारी चीजें देखी। John was still alive as a human being on earth. तो योना उस वक्त जीवित था और मनुष्य शरीर में था। वो Whatever he saw in his vision was so marvelous, was so special that these are the best words he could think to write it. तो योना ने जो भी देखा उसके मुताबिक उस वक्त उसको जो भी सही शब्द लगा उसके लिए तो उसने वो लिख दिया। He thought the best way to explain heaven is gold and the glass and the transparent and white and all those things. तो उसने जब देखा उसको जैसा अगर कलर लगा गोल्ड की तरह उसने वहां गोल्ड लिख दिया, शीशे की तरह कुछ नजर आया उसने वहां शीशा लिख दिया। तो इस तरह उसने शब्दों को लिखा है। Because he thought this is the best way he could express what he saw. तो उसके लिए भी जो समझने का और समझाने के लिए जो सही बेस्ट तरीका था, शब्द थे, उसने उनका इस्तेमाल किया। But when we read these things, और जब हम ये चीजें पढ़ते हैं the Holy Spirit reveals to us how it is and what it is.
परंतु प्रभु का पवित्र आत्मा हम पर ये खोलता है कि प्रकट करता है कि ये क्या है। That is why here Thomas is asking, he is thinking there is a road Jesus will now walk and he will go on a way, and let me also know which is that way, but I don't understand what is that way. थोमा भी यही समझ रहा है कि कोई रास्ता जो सड़क है कोई जा रही है जहां प्रभु यहाँ से गुजरेगा, जो मुझे नहीं पता वो रास्ता कौन सा है। Jesus understood his question. तो प्रभु तो समझ गया कि थोमा क्या समझ रहा है यार जी। Spirit of God was upon Jesus Christ. He knew everything. तो प्रभु का पवित्र आत्मा यीशु के ऊपर था, वो सब जानता है। So Jesus said to him in reply to this question, तो प्रभु ने उसे इस सवाल का उत्तर दिया, I am the way, the truth and the life. मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। No one comes to the Father except through me. बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास पहुंच नहीं सकता। If you want to go, if you want to know that street, if you want to know that road, if you want to know how to go there, follow me. धन्यवाद। अगर तुम जानना चाहते हो कि वो सड़क को मार्ग कौन सा है, कहाँ जाता है, तो तुम मेरे पीछे हो लो। Just follow Jesus and you will reach heaven. सिर्फ यीशु के पीछे चलें, He is the way. वो रास्ता है, He is that street. He is that road. वही रास्ता है And He is the truth. और वो सत्य है। That means if you follow this road, you will not go wrong. इसका अर्थ है कि अगर आप यीशु के पीछे चलेंगे तो आप भटकेंगे नहीं, And you will reach eternal life. तो आप अनंत जीवन में पहुंच जाएंगे। Then it will get connected to the verse which He say, I will come back and take you. तो ये इस वहां से जुड़ती है जहाँ प्रभु ने कहा मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए He जगह will तैयार take us करूंगा। to those mansions in the kingdom of heaven. तो प्रभु ने ये चीजें उसमें भी मेंशन की है स्वर्ग के विषय में। We have to hold His hand. हमें प्रभु का हाथ पकड़े रहना We है, have to recognize He is the way. हमें ये कबूल करना है कि प्रभु रास्ता है, He is our guide. वो हमें रास्ता दिखाने वाला He is the truth. वो सत्य है। He came back to us as Holy Spirit, guiding us and teaching us every day how to go to heaven. वो पवित्र आत्मा के रूप में वापिस आया और हमें तालीम दे रहा है, शिक्षा दे रहा है। Today, whatever we know from the Word of God, if it is revealed to us, it is the same Holy Spirit which is teaching us. आज जितना भी हम कलाम जानते हैं, जो भी भेदों को समझते हैं, जितना भी प्रकाशन है हमारे पास, वो पवित्र आत्मा है जो हम पर खोलता है। Without this Holy Ghost, we cannot do anything. बिना पवित्र आत्मा के हम कुछ भी नहीं समझ सकते। We can recite Bible morning till evening. The outcome will be nothing. हम सुबह से लेकर शाम तक सारी बाइबल पढ़ते रहें, लेकिन बिना पवित्र आत्मा से हम नहीं समझेंगे। It can give us knowledge. तो फिर हमें सिर्फ नॉलेज जरूर मिल We जाएगी। will know all the verses of the Bible by heart. हम इस नॉलेज जरूर पा लेंगे कि कौन सा वचन कहाँ लिखा है, That is not enough to go to heaven. लेकिन ये हमें स्वर्ग नहीं लेके जाएगा। ये What is the mystery in those verses? We must know that only Holy Spirit will reveal. जो इस प्रकाशन है इस कलाम का, भेदों का, वो हमें लेके जाएगा। So we depend on that Holy Ghost. तो हमें उस पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर रहना है। There is also another great promise hidden in the depth of this promise. और प्रभु ने इसके साथ एक और वादा दिया है। Once we live in rapture with the Lord, जब हम प्रभु के साथ ये छोड़ेंगे, He says, where I will be, you will also be. जहाँ मैं रहूंगा वहां तुम रहोगे। So wherever Jesus is, we will be sticking to Him like a glue. तो जहाँ भी प्रभु रहेगा हम भी वहीं रहेंगे। Because
The bride will go in the rapture, but after the wedding supper, the bride will become his wife. तो जब दूल्हा जो कुंवारी रैप्चर में जाएगी, उसके बाद शादी के बाद वो उसकी दुल्हन होगी। They will not be bride and bridegroom anymore. तो वो पहले वाले नहीं रहेंगे, They will be husband and wife. वो पति पत्नी होंगे। Husband and wife share the same bed. वो जिस तरह एक ही बेड होता है, She is the flesh of his flesh and bone of his bone, one body. वो एक ही बदन होंगे। So whether it is millennium, तो चाहे ये 1000 साला राज हो, whether wherever Jesus is coming back, the bride is with him as his wife. तो जब यीशु आएगा तो दुल्हन भी उसकी पत्नी के साथ रूप में वापिस आएगी। In New Jerusalem, she is his wife. नए यरूशलेम में वो उसकी पत्नी होगी। Whatever Jesus is doing thereafter, bride is always, his wife is always with him, not to be called bride, but the wife. तो वह उसकी पत्नी कहलाएगी इसके बाद। Now what will happen to this son in the end? तो अंत में पुत्र का क्या है? We just now said that we will read one verse and then we will close. और आइए हम इसके बाद हम बंद पूरा करेंगे इस मीटिंग को। This world will go on, this earth will go on until the white throne judgment. तो ये संसार तब तक चलता रहेगा जब तक सफेद सिंहासन न्याय वाला ना लगेगा। After the white throne judgment, the devil and his army and all his followers will be thrown into the fire. तो शैतान और उसके सभी चेले उस नरक कुंड में फेंक दिए जाएंगे। And God will make a new heaven and new earth. प्रभु नया आकाश नई पृथ्वी बनाएगा। There will be no old earth. पुरानी पृथ्वी नहीं रहेगी। There will be no memory of the old earth. कोई याद भी नहीं रहेगी। If the memory remains, we will again be sad. We will again be thinking, oh, that happened, this happened. अगर याद रहेगा तो फिर हम उदास हो जाएंगे। We will not remember anything in the new heaven. तो हम कुछ भी याद नहीं रहेगा हमें। Bible says all things he makes new and old things are done away and gone away and no more. तो बाइबल कहती है सब कुछ नया बन जाएगा। We like it or we don't like it, this is going to happen. हम पसंद करें चाहे ना करें ये हो जाएगा। And if we don't like it, then we will not be there. हम अगर ये पसंद नहीं करते तो हम वहाँ नहीं होंगे। If we like this world and things of the world and style of the world so much, then why should we go to heaven? तो अगर हम ये सारा पसंद करते हैं संसार तो हम नहीं जाएंगे। But then we know the end is very dangerous. तो हम जानते हैं कि अंत खतरनाक होगा। And we know that we don't want to go to that dangerous path. तो हम वहाँ नहीं जाना चाहते। Now let us read one verse and we close. आखिरी आयत पढ़ेंगे उसके बाद हम बंद करेंगे। 1 Corinthians chapter 15 and verse 28. पहला कुरिन्थियों और उसका 15 अध्याय। पहला कुरिन्थियों और 15 अध्याय And verse 28. और उसकी 28 आयत। 1 Corinthians 15:28. पहला कुरिन्थियों 15 और उसकी 28। This is the verse which is telling us the finishing of the relationship or the finishing of the office of the Son. S-O-N, not S-U-N. तो ये आयत हमें बताती है कि जो पुत्र का भी जो कार्य क्षेत्र है यहाँ आकर वो कंप्लीट हो जाएगा। The beginning of the office of the Son started when he was born 2000 years ago in the human, when the word became flesh. तो पुत्र का जो कार्यशैली थी, जो ऑफिस था, तो आज से 2000 साल पहले शुरू हुआ। And Jesus declared in Matthew 28:18 that all authority has been given unto me.
तो प्रभु ने भी जो कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, until his death, up to the point of this death, Jesus was in subjection to his Father. तो वहां से लेकर प्रभु यहाँ तक जो था वो उसके पुत्र के रूप में था। He was doing everything as the Father was showing, as the Father was permitting, and he was obedient to the Father. तो वो जो भी कर रहा था वो अपने पिता की आज्ञाकारी में कर रहा था। So that means, and then when he died and he was glorified, और जब वो उस कुर्बान हुआ तो महिमा में पहुंचा, God glorified him and God was glorified in him, and all authority was given to Jesus Christ, and he became Lord Jesus Christ. तो आखिर में सारा अधिकार फिर से पिता को दे दिया जाएगा, सब कुछ वही होगा। He was in the after his resurrection, he received all authority and he became Lord Jesus Christ. तो जीवित होने के बाद उसके पास सारा अधिकार था, इसलिए वो प्रभु कहलाया। Even now he is continuing that authority. अभी भी वही अधिकार उसके पास है। This will continue until the time white throne judgment finishes. ये तब तक चलता रहेगा जब तक सवेद सिंहासन का न्याय ना हो। And when that is all done, जब ये सब कुछ हो जाएगा, verse 28, 28 आयत हुए, now when all things are made subject to him, then the Son himself will also be subject to him who put all things under him. ये सब कुछ उसके अधीन हो जाएगा, तो पुत्र आप भी उसके अधीन हो जाएगा, जिसने Let us सब read and understand this verse correctly, brothers and sisters, so that many doubts will be cleared. ध्यान से इसे पढ़ें ताकि आपके सारे शक दूर हों। All things that are made subject to him, that means all things which God gave under the authority of his Son Jesus Christ, then the Son, that means Jesus Christ himself, will also be subject to him who put all things under him. तो सारा लास्ट में सारा कुछ प्रभु भी पिता में हो जाएगा। And then God may be all in all. तो सब कुछ सिर्फ परमेश्वर ही होगा। So in the new heaven and new earth, what will happen? तो क्या होगा? नए आकाश पे There will be no son. वहाँ पुत्र नहीं है। There will be no office of the Son of Jesus Christ. तो वहाँ कोई पुत्र का दफ्तर नहीं है। From where this Jesus Christ came? कहाँ से आया? He was once born on earth in the flesh, but who was he? He was the word of God, Logos. वो वचन था जो देदारी हुआ। And in the body, he was given all authority in the glorified body. वो शरीर में वो महिमा में गया। Because he had job to do, he had purpose to do. क्योंकि उसके पास एक जिम्मेदारी थी। When that purpose is over, जब पूरा हो गया, the office of son is not required. अब पुत्र के दफ्तर की आवश्यकता नहीं। God created this office and God finishes the office. प्रभु ने ये दफ्तर तैयार किया था और All the authority which the son received, he hands over all the authority back to the father. उसने वापस पिता को दे दिया। That is why Paul says here, God will be all in all. इसीलिए लिखा है कि सब कुछ पिता है। अब So brothers and sisters, let us clearly understand. तो हम इसे समझें। Living in those mansions, जो लिखा है, living in eternal life, अनंत जीवन वाला living and spending eternity in heaven with God, प्रभु के साथ हमेशा का जीवन जिए। we will be spending eternity with God, not with God and Son. प्रभु के साथ हमेशा का जीवन जिए। Similarly, before the beginning, there was no father and son in eternity. जिस तरह उससे पहले नहीं होगा, There was no father and son in eternity before the world began. जिस तरह पहले नहीं था पुत्र, Likewise, there will be no father and son
in eternity after the world will finish. बाद में भी नहीं होगा पिता पुत्र का। God was all in all before he created the world. प्रभु ही होगा सब कुछ। God was all in all before he made the world. प्रभु ही सब कुछ होगा। God will be all in all after he makes the new world. प्रभु ही सब कुछ होगा जब सब कुछ अंत में। This should be our understanding, brothers and sisters. ये हमारी समझ है भाइयों। Then no wrong teaching, no Trinitarian formula will come and bother us. कोई गलत शिक्षा नहीं होगी। And when our faith is made like this, और हमारा विश्वास इस तरह होगा, that means we have received the grace from God. तो हमें प्रभु के से महिमा अनुग्रह मिलेगा। And more grace, when we receive more and more revelation, will be opened upon us from the Word of God. प्रभु और हमारे ऊपर प्रकाशन खोलेगा। May we prepare ourselves for His coming हम अपनी तैयार करें by the Spirit and by His Word. प्रभु के वचन आत्मा से। And may God continue to bless us. प्रभु आप सबको आशीष दे। Now we have received, may we receive the blessing from His holy word. हमने आशीषें पाई प्रभु के May वचन we से। continue to follow the way that Jesus has shown us, हम प्रभु के कलाम में चलते रहें जैसा so that दिखाया। we can go to those mansions He is talking about, हमने जो बात की फिर उस पर बने रहें, so that we can reach those mansions where Jesus is taking us. जो प्रभु ने हमें दिया हम वहां पहुंचे। So this is the close of our meeting. We will thank God for this meeting and pray with Brother Rajendra Masih. Then we close. And thank you, Brother Jaswinder, for translation. Now we are praying with Brother Rajendra Masih. God bless you. गॉड ब्लेस यू ब्रदर। तो आइए हम सब लोग खुदा की हुजूरी में अपने सिरों को झुकाते हुए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया, पवित्र 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 जो था, जो है, जो आने वाला सर्वशक्तिमान खुदावन, तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करते हैं खुदावन इस अनुग्रह के लिए और समय के लिए जो तेरे द्वारा दिया गया, ताकि प्रभु जी हम तेरे पवित्र कलाम को अपने जीवनों में ले सके। जैसा तूने वादा किया कि इंसान रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के उस मुख से जो वचन निकलता है उससे जीवित रहेगा। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं तेरे सुंदर वादों के लिए। जैसे तूने यूहन्ना 14 में वादा किया, मैं जा रहा हूँ, मैं फिर से आऊंगा और तुम्हें ले जाऊंगा। सचमुच प्रभु जी जीवन, रास्ता और सच खुदावन तू है। प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं। और खुदावन तू हमारे लिए इस जमीन पे शरीर लेके आया, हमारे गुनाहों की खातिर तूने कोड़े खाए, पवित्र लहू बहा दिया ताकि हम पापी बचाए जा सके। प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं और खुदावन सारी जीवन की मेहरबानियों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। और प्रभु जी होने दे जब तक हम इस जमीन पर रहे, पूरी सच्चाई के साथ, पूरी आत्मा के साथ प्रभु जी हम तेरी भक्ति बंदगी करें, तेरी महिमा करें। प्रभु जी अनुग्रह कर खुदावन, खुदा हमारी कमियां कमजोरियां अपने वचन के वसीले से दूर कर। प्रभु जी तेरा पवित्र आत्मा हमें गाइड करे प्रभु जी। और खुदावन हम इस संसार की दुनिया के पीछे नहीं बल्कि खुदावन तेरे पीछे चलने वाले हो सकें, और खुद दुनिया की कोई भी चीज हमें तेरे प्यार से अलग ना कर पाए। प्रभु जी जैसा तेरा बंदा दाऊद कहता है कि मेरे से बेशक सब कुछ चला जाए लेकिन खुदावन तू अपना आत्मा मुझसे जुदा ना कर। प्रभु जी खुदावन हमसे तू जुदा ना होना अपने कदमों में बनाए रख। प्रभु जी फजल अल्लाह हम हाथ हम पे रख दे, क्योंकि खुदावन तू ही हमारा अच्छा चरवाहा है। प्रभु जी तू ही हमारा राजा है, तू ही हमारा आगू है, सब कुछ खुदावन तू है। खुदावन हमें तेरे सहारे की जरूरत है। प्रभु जी अनुग्रह कर खुदावन, ईमान विश्वास की तकड़ाई दे, हमें मजबूत कर खुदावन, कि खुदावन हम हमेशा तेरे डर खौफ में रहें और खुदावन हम दीन बने। प्रभु जी और जितने भी भाई बहन जो मीटिंग पे इकट्ठा हुए हैं सभी पे, सभी घरानों पे बहुत ताज से आशीष बरकत दे, हर कमियां कमजोरियां उठा ले।
हर पाप बोझ उठाने वाला तू परमेश्वर है प्रभु जी। खुदावन जैसे तूने मत्ती 11:28 में कहा है कि यह बोझ के दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूं। सचमुच प्रभु जी तू आराम और शांति देने वाला परमेश्वर है, तू शांति का राजकुमार है प्रभु जी। और आर्मीनिया में जितने भी ब्रदर सिस्टर है खुदावन, जिन्होंने खुदावन तेरे वचन पाया है, खुदावन होने दे खुदावन वो वचन पे स्टैंड रहे और तेरे वचन के साथ चलें। और जिन्होंने बपतिस्मा लिया उन पे अनुग्रह कृपा करना, और जो लेने वाले हैं प्रभु जी उन पे भी तेरी दया कृपा हो प्रभु जी। जो कमजोर है खुदावन, तू खुद खुदा उन्हें ताकत सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर है। और खुदावन हम जब फिर से मिलें तेरा धन्यवाद करें, और आज जैसे तुझसे मांगा गया प्रभु जी हमने पाया है, होने दे आज तेरे सेवक के द्वारा जो वचन सुना है प्रभु जी, हम सिर्फ सुनने वाले ना हो, उस पे खुदाबंद मनन करे, स्टैंड रखें और बहुत सारा फल लाएं प्रभु जी। और खुदाबंद बहुत सारे लोगों को भी हम तेरा सच्चा कलाम बताने वाले हो सके। अनुग्रह कृपा दया करना, अपनी आमद तक संभाल के रखना प्रभु जी। और खुदाबंद जब तू आए हमारी कमरे बंदी रहे, हमारे दिए जलते रहे। सभी भाई बहनों को बहुत से आशीष बरकत देना। हम फिर मिलें, सिर्फ तेरा धन्यवाद करें और महिमा करें। और प्रभु जी भाई मैनुअल को बहुत सारी आशीष बरकत देना, और खुदाबंद अपने पवित्र कलाम के लिए और ज्यादा इस्तेमाल करना। और भाई जसविंदर को बहुत सारी आशीष बरकत देना जिन्होंने ट्रांसलेशन की, और प्रभु जी अपनी पवित्र सेवा के लिए और फिर ज्यादा इस्तेमाल करना। और खुदाबंद इस छोटी सी बेनती को प्रभु जी तेरे आगे रखते हैं, और हम विश्वास करते हैं जो तुझसे प्रार्थना की गई, विनती की, खुदाबंद तूने दुआ को सुना है और कबूल किया है। और मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु तेरे नाम से जो मांगते हैं हमें मिल गया है। मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से, आमीन। आमीन। धन्यवाद। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो कि हम सब मिल सके। उसके वचन के लिए उसका धन्यवाद हो, और प्रभु हम सबको ऐसी शक्ति दे और ऐसी हिदायत दे कि अपने वचन से हमें दिन पर दिन बढ़ता जाए, जिससे कि हम उसकी आमद की तैयारी के लिए, उसकी वापसी की तैयारी के लिए अपने आप को डेली तैयार कर सकें वचन के द्वारा। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।